is a competition because as the video calling and online conferencing, video conferencing has increased over this pandemic period. So they want to capitalize or they want to increase their market share in there. So they, in a way you can say that it's an alternative for Zoom. तो जूम में जो जो फीचर्स हैं उनका वो सारे ऑलमोस्ट फीचर्स मिलते हैं वहाँ पे भी, लेकिन फ्यू फीचर्स नहीं मिलते, जैसे वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं है. प्लस पॉइंट है कि 50 लोगों तक आप अनलिमिटेड मीटिंग कर सकते हैं. देयर इज नो देयर इज नो लिमिट ऑफ टाइम कि कितने टाइम तक मीटिंग होगी. उसके बाद यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम योर न्यूज़ फीड. आप फेसबुक चेक कर रहे हो, अपने न्यूज़ फीड से स्टार्ट कर सकते हो, मैसेंजर में हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, अपने इवेंट पेज पे हो, जितने भी लोगों ने इवेंट में इंटरेस्ट लिया है उन सबको एक साथ इनवाइट कर सकते हो. आप अपने ग्रुप में हो, सारे ग्रुप के मेंबर को एक साथ इनवाइट कर सकते हो. So as soon as you are setting up the meeting and inviting the people, they will get immediate notification in their inbox कि someone has created the chat and inviting you for that chat. So when they will join, they have the option कि उनको अपना वीडियो ऑडियो ऑन रखना है, ऑफ रखना है. So they can अगर वीडियो ऑन करते हैं तो that will be a video chat, नहीं ऑन करते हैं that will be a simple as we are doing the online conferencing, that kind of thing. So लेकिन वहाँ पे that I have also thinking of कि अगर फ्री वाले में है तो it's very good idea, but रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं होती है. रिकॉर्डिंग के लिए फिर जुगाड़ करना पड़ता है. Right. So अभी रिकॉर्डिंग से मुझे याद आ गया. Now you are talking about something related to YouTube. So let's open YouTube. In YouTube, there was some questions related to YouTube, right? Creator Academy, this is the YouTube certification. And ma'am, how about this course? Ma'am, can we start the course? Yes, it's available to you. You can just start the course the way you want. You have to just go through the course and give the exam. So there is no particular order. आप उसमें से जो वीडियो कंटेंट है उस वीडियो कंटेंट को देखना चाहो, पढ़ना चाहो, उसके बाद एग्जाम देना चाहो, अदरवाइज यू कैन सिंपली गिव द एग्जाम. So all these let's say you can do it, these courses. It's up to you that how much you want to do. It's all available to you. So Creator Academy exclusively designed for all the people who is like if you are going for the YouTube live, then YouTube का if you setting up your channels, तो channels में thumbnail जो भी मैंने जो बताया है ना, almost सारी चीजें वही हैं. So you have a quick start guide. तो मिनिमम क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, चैनल का थंबनेल डालना है, चैनल के कवर इमेजेस डालने हैं, चैनल का नाम डालना है, नाम कैसा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल क्रिएटर. आफ्टर डूइंग दिस कोर्स हमें ये वाले कोर्सेज भी करने चाहिए टू मेक इट वर्क बेटर. दैट्स व्हाट यू आर सजेस्टिंग. या वो जो गूगल वाले थे, मतलब दीस कोर्सेज आर टू बी डन अगेन. What is your objective of doing it? If you want to go for any, if you want to showcase your skill set to someone else, like somewhere it's a deciding factor that how many courses you have done or how many certification you have or how much experience you have, or you have to give some testimonial that you have worked on some project. So in that case, yes, you will as much course you will do, that will be going to benefit you. If it is a matter of only practicing for yourself, you don't want to impress anyone. Like if you are giving training, it's always good idea do as many courses as you can. If you are applying for job, so yes, do as many courses. You need not to do it in one go, but you can make it a schedule to do it once in a month, like one course in a month or one course in 3 months. So you have to be on like you have to be in the mode of learning every single time. So the good part is that all these courses are industry recognized course. As soon as they will recognize that you are directly getting information from the YouTube, there is no intermediator. So you are not getting any gossips. You are getting to the point features from the creator itself, right? Whoever is created this, they are giving you some information. So the source of information is very authenticate. So, but if you are doing it to promote your channel, you are not giving training, you are not applying for any job, you are not a part of any like you can say that part of any group where you have to showcase your you have to prove that you have something, you have some knowledge, you have some experience, you have some
तो वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आप अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हो, आप अपना यूट्यूब, यू हैव टेकन द टारगेट कि मुझे 1000 व्यूज लाने हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स लाने हैं, so you are doing for yourself, you are not using this for anyone else, then it's not necessary कि आपको करना है। उसमें क्या होता है कि मेनली आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, काम करना होगा, and once you will do it then you will get to know that what's working and what's not working। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हो, आप यूट्यूब का टाइटल डालते हो और टाइटल चेंज करते हो, व्यूज बढ़ जाते हैं, तो नाउ यू नो दैट कि व्यू इज अ फैक्टर इन रैंकिंग। अदरवाइज जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने, बेसिक नहीं बहुत एडवांस मैंने आपको बताया हुआ है, if you are keeping that factor in mind, you are doing very like right job, if you will implement those information, those knowledge in your channel, you are doing fantastic job। but yes, systematic ढंग से you want a checklist कि okay मैंने ये कर दिया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, so yes you can go through it, it's always। and one more thing, in digital medium में सबसे बड़ा जो, अगर सब लोग बोलते हैं मैम आप बुक क्यों नहीं लिख देते, आपको कोई फिक्स कोर्स क्यों नहीं बना देते, so उसमें मेरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी जो मैंने आपको वीडियो ले, सपोज मैंने जो भी बताया प्रैक्टिकली बताया आपको, यूट्यूब पे खोल के बताया, जो फीचर्स बताया, जो डैशबोर्ड बताया, 2 महीने बाद 6 महीने बाद उस डैशबोर्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा डैशबोर्ड चेंज हो चुका होगा, राइट। आपको यूट्यूब कोर्स कराने से पहले मैंने 7-8 महीने पहले और भी बहुत सारे यूट्यूब लोगों को कोर्सेज कराए हैं, 10-10 घंटे का केवल और केवल यूट्यूब कोर्स है। लेकिन अगर मैं वो वीडियो आपको शेयर करूंगी तो उसमें यूट्यूब स्टूडियो का इंटरफेस नहीं है, इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया था पूरा क्लासिकल इंटरफेस है, जो वीडियो मैनेजर मैंने बताया था कि वीडियो मैनेजर से चेंजेस होते हैं, वो वीडियो मैनेजर का इंटरफेस है। तो आज जो अभी आप कोर्स कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस में रहोगे, अगर रेगुलर आप इसको यूज कर रहे हैं और तब इंटरफेस में चेंजेस देखोगे, तब तो आप उसको तुरंत कैच कर लोगे एंड यू नो दैट कि किस रीजन से क्या चेंजेस हुए हैं और उस चेंजेस को कैसे यूज करना है। लेकिन आपने अभी आज कोर्स किया और 6 महीने बाद आकर के आप उस पे काम कर रहे हो, तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत ज्यादा आपको चेंज दिखेगा। फिर आपको लगेगा कि मतलब यू फील अ काइंड ऑफ लॉस्ट कि मैम ने तो कुछ और ही बताया था, यहाँ तो कुछ और ऑप्शंस दिख ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में इफ यू आर इन टच विद दिस कोर्स, यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन। क्योंकि the creator is giving you the information, chances are that you are whenever they will do any changes, they will include in that course। you are in my networks, I will be keep updating the new things, but it's not possible to update all the topics। so जब भी कोई मैं नया कोर्स लॉन्च करूंगी, उसमें जो अपडेट्स होगा दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद द कम्युनिटी। अगर मैंने आज यूट्यूब का अपडेट चेंज किया है, शेयर किया है, तो फेसबुक का हो सकता है अभी 2 महीने बाद में बताऊं। फेसबुक जैसे अभी मई में लॉन्च हुआ है, वो आप जो पूछ रहे थे क्या, मीटिंग रूम। अब मई से पहले जितने लोगों ने भी फेसबुक का कोर्स किया होगा, उनको मीटिंग रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, राइट। तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म हैं वो इतने मतलब दे आर सो कस्टमर सेंट्रिक, सो मच कस्टमर एंड मनी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स आर देयर। तो उनको पता है कि पैसे तो कस्टमर से आने हैं, और उनको ये भी पता है कि कस्टमर का एक एक डेटा वो ट्रैक कर सकते हैं, द हाउ दे आर क्लिकिंग, हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग, विच डिवाइस, हाउ व्हेन दे गो एंड लीव देयर वेबसाइट्स, व्हाई दे लीव देयर वेबसाइट, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा। तो उस डेटा को की एनालिसिस करके वो हमेशा नए नए और खासकर दे हैव एनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी। so as soon as they realize the gap between the customers requirement on their platform, उनको ये पता चलता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और उनकी प्लेटफॉर्म उस रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रही है, सो दे इन्वेस्ट द मनी इन द टेक्नोलॉजी टू ब्रिज दैट गैप। जैसे कि अगर आज की डेट में उनको पता चला कि पेंडेमिक है और इफ यू नो दैट कि जूम जो है वो 3000% इंक्रीज हो गया उसका मतलब यूसेज, 3000 या 3500% इंक्रीज हो चुका है। सो नाउ इवन इफ द इंडस्ट्री शोइंग दैट कि 350 बिलियन का ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो डोमेन है, वो अपने आप में आने वाले टाइम में 350 बिलियंस का इंडस्ट्री होने वाला है, ऑनलाइन नॉलेज गिविंग, नॉलेज शेयरिंग और ये वाला जो पार्ट। अब उस इतने बड़े मार्केट शेयर का अगर उनको 10% भी शेयर मिलता है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट। So here
they are always ready to capitalize the that customers की requirement and any money making opportunities. They never ever miss because they have the money, they can invest, they can hire the top talent, and they know the objective कि उनको customer की कौन सी requirement पूरी करनी है. They have the clarity कि अभी video conferencing की requirement है तो उनको एक video conferencing facilities अपने platform में integrate करना है. So they understand the need, they invest in technology and best talent, and then they give the solutions because they have the database. उनके पास already इतना बड़ा user base है, उसमें से 2%, 10%, 20%, 50% भी convert हो जाता है, उस product को explore करता है. So they can make good. अगर वो click हो गया तो they can make and मतलब you can't say that कि कितना money वो बना सकते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस प्लेटफॉर्म, अगर वो प्लेटफॉर्म आपको, और हर प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग देता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ट्रेनिंग नहीं देता है. यूट्यूब का क्रिएटर एकेडमी है, तो फेसबुक का ब्लूप्रिंट है, तो हर प्लेटफॉर्म का एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेक्शन आप देखोगे. हर प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग अवेलेबल है. तो आप अगर किसी प्लेटफॉर्म में मास्टरी कर रहे हो, if your identity is you are master of YouTube, so you have to up to date with this their next upcoming thing. If you are establishing yourself as a Facebook marketer, तो Facebook में नया जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए उसको आपको अपने मतलब पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा. So again I'm saying riches in the niches. So you have to establish yourself as one, you have to create your identity, not a digital marketer, but rather a YouTube marketer or a Facebook marketer or YouTube lead generation or Facebook lead generation or YouTube branding or Facebook branding. So content creator or content strategist or content writer or content visualizer. So you have to find your identity. So once you are finding the identity, now prove that how you are the right person, who you are to give that services to me. Why I should take service from you? Because you are up to date with that platform, you have taken this kind of training, you have given this kind of services. So अब उस identity के support में आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको showcase करते हो कि ये मेरी identity है and why you should believe me. So this, from that point of view, you should be up to date with these courses. I think I made enough. ज़्यादा बता दिया? या ठीक है? नहीं मैम. ठीक है, मतलब बेसिक आपको वही है, गेट स्टार्टेड कैसे करना है. आपको बेसिक आप करने जाओगे तो मन नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ बहुत आपने ऑलरेडी सुनी. गेट स्टार्टेड करना है तो चैनल का फाउंडेशन क्या होना चाहिए, चैनल का नाम, चैनल का आर्ट इमेज, चैनल का थंबनेल, चैनल का इंट्रोडक्शन, चैनल में इंट्रो, फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए इंट्रो वीडियो, फर्स्ट टाइम रिटर्न यूजर के लिए इंट्रो वीडियो, चैनल के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उन सेक्शन अप टू डेट अपडेट सेक्शन, पॉपुलर अपडेट्स, प्लेलिस्ट का सेक्शन. तो ये आपका फाउंडेशन हो गया. उसके बाद कंटेंट स्ट्रैटेजी. जब चैनल बन गया तो आपको रेगुलर कंटेंट बनाना है. तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया कि आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है. आप जो भी टाइम जो भी फिक्स कर रहे हो, जैसे टीवी में सीरियल्स आते हैं, बिल्कुल फिक्स होता है 9:05 पे स्टार्ट होगा तो 9:05 पे स्टार्ट होगा. उसी तरह आपने अगर कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई है तो एक तो कंटेंट स्ट्रैटेजी, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, यू आर यूजिंग दिस कंटेंट फॉर एजुकेटिंग देम, फॉर बिल्डिंग द ब्रांड, फॉर अनाउंसमेंट्स, फॉर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट बनाओगे. कंटेंट का एक पूरा का पूरा कैलेंडर आपके पास होगा कि हाँ इस डेट को इस टाइम पे इस टॉपिक पे कंटेंट जाना है. और यू हैव टू मैनेज दैट ट्रस्टफुलनेस. मतलब यूट्यूब आपके चैनल पे ट्रस्ट कर पाए. आप किसी टीवी चैनल पे क्यों ट्रस्ट कर पाते हो? आपको पता होता है कि केबीसी 9 बजे आएगा तो केबीसी 9 बजे आता है. इट्स नॉट लाइक कि अच्छा आज 8:30 बजे आ गया, कभी 5:30 बजे आ गया, ऐसा नहीं होता है. तो आपके कंटेंट स्ट्रैटेजी में आपको ये चीज़ भी इंक्लूड करनी पड़ेगी कि आपका कैलेंडर, एडवांस कैलेंडर आपका रेडी होता है. इट्स नॉट, जो भी मैं अभी बता रही हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर द यूट्यूब, फॉर ऑल द सोशल मीडिया. यू हैव टू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन ऑनलाइन मीडियम. So you have to own the responsibility कि you are a very very big brand. मतलब आपको मतलब बताना पड़ेगा कि you have मतलब आप भले एक ही अकेले काम कर रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट से, आपके यूट्यूब चैनल से, आपके फेसबुक पेज से जो प्रोफेशनलिज्म है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दे फील लाइक आपके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है.
आप अगर वीक में एक ही वीडियो डालते हो तो एक वीडियो का टाइम फिक्स है, उस वीडियो में आ ही जाता है, उस टाइम पे आ ही जाता है, आपका वीडियो ऑटोमेटिक सारे सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है। आप कमेंट्स को देखते हो, आप कमेंट को रिप्लाई करते हो, कमेंट से क्वेश्चंस पिक करके फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाते हो। तो आइडियली ऐसे देखो तो ये एक आदमी के काम का लगता नहीं है कि एक आदमी का काम है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक ढंग से करते हो, फोकस होकर एक ही प्लेटफॉर्म पे करते हो, तो आपका एक आदमी भी कर सकता है इन कामों को। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी पार्ट इज देयर। प्रोडक्शन, अब आपने कंटेंट डिसाइड कर लिया कि मुझे एजुकेशन कंटेंट बनाने हैं, तो अब वो स्क्रीन शेयरिंग के कंटेंट होंगे, एनिमेशंस के कंटेंट होंगे, या फेस रिकॉर्डिंग होगी, या लाइक आपको प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स आपने डिसाइड कर लिया ये टॉपिक है, उसके पीपीटीज को प्रेजेंट करना है, या प्रोफेशनल कैमराज से शूट कराना है, या अपने खुद के मोबाइल को ट्राइपॉड पे डाल के शूट कर लेना है, या कैनवा से वीडियो क्रिएट कर लेना है, या मेरे पास पीपीटी है उसी को बस वॉइस ओवर दे देना है, या आप यू कैन डिसाइड दैट कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फाइनल, बिकॉज यूट्यूब इज द वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो प्लेटफॉर्म। तो अल्टीमेटली आपको जो भी कंटेंट स्ट्रैटेजी बना लो, उसको प्रोड्यूस तो आपको वीडियो फॉर्मेट में ही करना है। तो दैट इज द एंटायर। फिर चैनल ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपने बेसिक बना लिया, अब ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज किस कीवर्ड के लिए, आपके चैनल का टैग क्या होगा, जो चैनल की बेसिक सेटिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसमें चैनल का ब्रांड नेम, लास्ट में ब्रांड नेम क्या आएगा, या फिर जो कॉमन कीवर्ड्स हैं चैनल में, जिस टॉपिक पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो कंटेंट, उसके कॉमन कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारा चैनल ऑप्टिमाइजेशन में जाएगा। इफ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम द यूट्यूब, तो व्हाट आर द ऑप्शंस। आप अपने वीडियो पे ऐड चलाओगे तो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होना होगा। अपने वीडियोस पे किसी और के कंटेंट का स्पॉन्सर चलाओगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक वीडियो में कोई प्रोडक्ट लॉन्च को शेयर कर, प्रोडक्ट लॉन्च को कवर कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट लॉन्च को में कितने पैसे लोगे, ब्रांड मेंशंस के कितने पैसे लोगे, या अपने कस्टमर्स को अगर किसी के लिए फॉर्म फिलअप करा रहे हो तो पर फॉर्म फिलअप कितने लोगे। तो आपके पास जो नाउ यू आर ओनिंग अ मीडियम। जैसे ही आपने यूट्यूब चैनल बना लिया या किसी भी मीडियम पे, नॉट अबाउट द यूट्यूब चैनल, आपने ब्लॉग बना लिया, नाउ यू आर ओनिंग दैट मीडियम। आपने फेसबुक पेज बनाया जिसमें 1 लाख फॉलोअर्स हैं, यू आर ओनिंग दैट मीडियम। यही तो है ना, टीवी भी तो क्या कर रहे थे, दे आर ओनिंग द मीडियम। उनके पास इतने व्यूअर्स हैं, न्यूज़पेपर के इतने रीडर्स हैं, मैगजीन्स के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, so they are owning the medium. So in the same way you have to feel like that you are owning the medium. आपने एक YouTube चैनल सेटअप किया, now you are owning that medium. अब उस मीडियम को मोनेटाइज कैसे करना है, यू हैव टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज कि इस मीडियम से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो नए नए निकालते रहते कि हाउ दे कैन मोनेटाइज। टाइम्स ऑफ इंडिया कंटेंट तो फ्री में दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजर से पैसे ले रही है। तो एडवर्टाइजर से किस बेसिस पे वो पैसे ले रही है, 2 स्क्वायर फीट का, 2 सेंटीमीटर के ऐड का कितना पैसा लगेगा, 3 बार ऐड, सप्ताह में 3 बार ऐड आएंगे तो कितने पैसे लेंगे, पूरे साल का अगर वो ऐड का सब्सक्रिप्शन खरीद ले तो कितने पैसे लगेंगे। अगर उसमें एडिटोरियल तो जनरली, अब जैसे आपको अपना ट्रस्ट भी बना के रखना है, आप यूट्यूब चैनल पे केवल और केवल पेड कंटेंट डालोगे तो योर यूजर्स आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट कि यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर नॉट हेल्पिंग योर ऑडियंस। तो आपको अपना सबसे बड़ा, तो कोई भी आपको पैसे दे रहा है आपके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको अपने ऑडियंस के बीच अपना ट्रस्ट बना के रखना है। तो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस कि आप पैसे भी बनाओ और ऑडियंस को भी रिटेन करके रख पाओ। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, या एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, या एड के थ्रू पैसे कमा रहे हो, या फिर आपने स्वैपिंग की हुई है कि आप अपने किसी और के बिजनेस को अपने चैनल पे प्रमोट करो, आपका चैनल किसी और कोई अपने बिजनेस पे प्रमोट करे। So these are the creative ideas to make money from your medium. Again, I will repeat it. On digital medium, you have to create your own media. You are owning your own media. राइट, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, आप किसी का कॉपीराइट यूज नहीं करो। आपको आपका कंटेंट को, कॉपीराइट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कोई अगर यूज कर लेता है तो उसको कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजेंगे, आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक्स कैसे भेज सकता है, अगर आपके पास 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मोनेटाइजेशन ऑफ हो सकता है, किस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये सारी चीजें पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, तो मेजर ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। लेकिन हाँ, आप इसको चाहो तो अप टू डेट यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा लेंदी नहीं है, तो यू कैन एक्सप्लोर डूइंग इट। राइट, फेयर इनफ।
अभी से जो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई, वहां पे हो सकता है थोड़े वर्ड्स जो है वो टेक्निकल वर्ड्स यूज हो सकते हैं. Got the idea? Can we move to today's topic? तो अब यहाँ Yes, से ma'am. स्टार्ट. छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, बहुत बहुत बड़ा बड़ा वीडियोस होता नहीं है, तो इट्स मतलब मेरे कहने का मतलब कितना भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, आपको रिजल्ट तभी मिलने वाला है जब आप उसको एक्शन में लेके आओगे. तो इंफॉर्मेशन आई ऑलवेज प्रेफर टू डू द माइक्रो लर्निंग. एक इंफॉर्मेशन, एक वीडियोस, आज अगर हमने एक वीडियो 1 देखा, वीडियो 1 में मैंने देखा कि टाइटल ऐसा होना चाहिए, तो गो एंड चेंज योर यूट्यूब टाइटल. वीडियो 2 में मैंने देखा कि चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए, तो गो एंड चेंज द डिस्क्रिप्शंस. आपने वीडियो 5 में देखा कि ये लेआउट होना चाहिए या चैनल में इंट्रो वीडियो होना चाहिए, तो टेक योर टाइम एंड क्रिएट द इंट्रो वीडियोस एंड इम्प्लीमेंट दैट इंट्रो वीडियोस ऑन योर चैनल. दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. अगर अपना चैनल ग्रोथ करना है, अगर केवल ट्रेनिंग देनी है, तो इट्स ओके, देन इट्स द यू हैव टू, यू नीड द हैंड्स ऑन. अगर रिजल्ट डिलीवर करना है तो आपको प्रैक्टिकल करना होगा, मतलब इम्प्लीमेंट करना होगा, नॉलेज को गेन करके उसको यूज करना पड़ेगा. महात्मा गांधी ने कहा हुआ है, इफ यू नो, डू यू नो द महात्मा गांधी सेइंग? एनी आइडिया महात्मा गांधी ने क्या कहा है इस बारे में? कुछ इससे रिलेटेड कोई बहुत पॉपुलर कोटेशन है महात्मा गांधी का. देयर इज अ कोटेशन कॉल्ड ज्ञान को कर्म में उतारने वाला ही सच्चा विद्वान होता है. मतलब इफ यू हैव द नॉलेज, इफ यू कैन एक्ट ऑन दोज नॉलेज, अगर उस नॉलेज को आप एक्शन में ला सकते हो, तभी आप मतलब सही विजडम आपके पास है. अगर आप एक्ट नहीं कर सकते हो उस एक्ट, तो उस नॉलेज का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा. So yes, fair enough. You can just go through that course, make a note, make a every note के according take the action. That is the best way to do that course. And because your foundation is very, जो आपने जो classes की हैं उसमें आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा भी एक्शन लिया होगा, थोड़ा न्यू कभी नोट बनाया होगा या उसके ऊपर कुछ काम किया होगा, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी. ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं समझ में आएगी. मतलब आपको बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा. शायद जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे उनके लिए वो थोड़ा टफ भी हो सकता है, वो उनको वो पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करना उनके लिए मतलब एक बहुत, देखो इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लोग नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो मतलब उस इंटरेस्ट आप उस सीखने का है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा टेक्निकल आता है, थोड़ा सा ऐसा आता है जो कि ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो दे लीव दैट कोर्स. ऑनलाइन कोर्स का कंप्लीशन रेट ओनली एंड ओनली 3% है, लेस देन 3%. मतलब 100 लोग अगर कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें केवल 3 लोग कंप्लीट कर पाते हैं ऑनलाइन, बिना किसी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन के. मतलब जैसे अभी 1-to-1 सेशन हो रहा है, तो देन यू कैन कंप्लीट 10 आवर्स के बदले 20 आवर्स हम लोग कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर यही कोर्स 15 मिनट का भी कोर्स है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन चाहिए उस लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 को कंप्लीट करने के लिए. Because no one is pushing you there you require that self discipline and self motivation and self मतलब उससे आपको इमीडिएट रिजल्ट दिख रहा हो, या उससे बहुत क्यूरियस कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो, कोई मतलब आपकी अर्जेंसी हो गई, क्लाइंट का रिपोर्ट मांग रहा हो, क्लाइंट का कोई काम फंसा हुआ हो, आपकी सैलरी रुकी हुई हो, शाम को क्लाइंट मीटिंग करने वाला है, उसमें क्वेश्चंस का जवाब देना हो, तब जाकर के आप एक के बदले 4 कोर्स भी कर लेंगे. बट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. मैंने जो कुछ भी सीखा है वो ऑन जॉब ही सीखा है और क्लाइंट के प्रेशर में ही सीखा है. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क एवरीवन कि आप ना कभी भी करियर स्टार्ट करो तो एक बार जा करके, अगर फास्ट लर्निंग करनी है तो जॉब करो, तो आपको बहुत फास्ट लर्निंग हो जाती है. और वैसे जहाँ पे प्रेशर हो, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करना ही करना है, तो वहाँ पे आप रास्ता निकाल लोगे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का. So yes, let's come back to our affiliate. Today we are supposed to discuss affiliate. Should we start affiliate? Yes, ma'am. Yes.
सो एफिलिएट अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि यूट्यूब को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत फैंटास्टिकली यू कैन यूज़ फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग एज वेल। तो एफिलिएट प्रोडक्ट इज नथिंग बट रिकमेंडिंग अदर्स प्रोडक्ट टू अर्न कमीशन। किसी और के प्रोडक्ट को रिकमेंड करना और कोई और आपके प्रोडक्ट को बाय करे, उसकी वजह से आपके रिकमेंडेशन से कोई प्रोडक्ट बाय करे, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट। So affiliate product, once you have decided about the affiliate product, you can you can promote it in on digital medium। किसी भी डिजिटल मीडियम में आप प्रमोट कर सकते हो उसको। ब्लॉग आपने बनाया, ब्लॉग पे प्रमोट कर दो, ब्लॉग कंटेंट, ब्लॉग का कंटेंट लिखो, साथ में अमेजोन का एफिलिएट लिंक डाल दो। फेसबुक पे जाओ, उस प्रोडक्ट के बारे में लिखो, साथ में अमेजोन का एफिलिएट लिंक डाल दो। आप यूट्यूब पे उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, साथ में डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट का लिंक डाल दो। अपने व्यूअर्स को बोलो कि अगर आप ये प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ट्राई करके देख लो। तो affiliate is only that you don't have your product, you are using others products, that is the only difference। otherwise the entire digital marketing you have to apply as it is। email marketing आप उस affiliate के प्रोडक्ट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन, सारे मेल तैयार करके 100 200 2000 1 लाख लोगों को मेल भेजो, जितने लोग भी उस लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग अब 120 घंटे, मतलब आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इस पे काम करना पड़ेगा। मतलब फाउंडेशन आपका मैंने बहुत क्लियर कर दिया है कि आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भी वही काम करना है, किसी और का प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो तो भी वही काम करना है, या अपने किसी मीडियम पे ट्रैफिक लाना है ताकि आप एड से पैसे कमा पाओ तो भी वही काम करना है। तीन ही तरीके हैं। आप कोई भी नाम कुछ भी उसका दे दो, लेकिन अल्टीमेटली यू नीड ट्रैफिक, यू नीड इंगेजमेंट एंड यू नीड कन्वर्जन। ट्रैफिक कहाँ से आएगा, इंगेजमेंट कहाँ से आएगा, कन्वर्जन कहाँ से आएगा, ये तीन चीज आप। अब ट्रैफिक आपको यू हैव टू डिसाइड दैट कि ट्रैफिक कहाँ लाना है। ब्लॉग पे लाना है तो यू हैव टू फोकस ऑन ब्लॉग। ट्रैफिक कहाँ लाना है, यूट्यूब चैनल पे लाना है तो यू विल फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू दैट। ट्रैफिक कहाँ लाना है, फेसबुक पेज पे लाना है तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। So that where that you will build your mastery। Okay, I am Facebook master। Facebook master में कि मैं ट्रैफिक फेसबुक पेज पे लेके आऊंगी, फेसबुक पे नंबर ऑफ लाइक बढ़ाऊंगी, फेसबुक पे एंगेजमेंट बढ़ाऊंगी, फेसबुक पे लीड जनरेशन करेंगे, फेसबुक पे ब्रांडिंग करेंगे। यू आर यूट्यूब मास्टर, सो यू आर सेइंग दैट कि मैं यूट्यूब पे ट्रैफिक लेके आऊंगी, कहीं पूरे डिजिटल मीडियम को यूज करके यूट्यूब पे ट्रैफिक लाएंगे, यूट्यूब के वीडियोस पे व्यूज बढ़ाएंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, यूट्यूब से लीड जनरेट करेंगे, यूट्यूब से ब्रांडिंग करेंगे। तो यू हैव टू पिक दैट कि किस कोर को आप प्रमोट कर रहे हो, किस कोर पे आप अपने प्रोडक्ट को किस में प्रमोट करना चाहते हो। अल्टीमेटली आपका जो बेस प्लेटफॉर्म है, दुकान तो एक ही होगी ना आपके पास, दुकान तो कोर दुकान तो एक ही है। एक्सटेंशन काउंटर कितने खोल दो, माल तो एक ही गोडाउन से सब जाएगा, लेकिन आपने एक्सटेंशन काउंटर 10 जगह खोला हुआ है। तो इट्स लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद एफिलिएट। द बेसिक ऑफ एफिलिएट इज यस जो अगर हम सॉरी YouTube मार्केटिंग करते हैं तो YouTube मार्केटिंग तो सिर्फ वीडियो ही होगा ना मेनली। हाँ, यूट्यूब में कंटेंट जो है अब वो पोस्ट भी अलाउ कर रहा है। यूट्यूब जो है वो आप पोस्ट के थ्रू भी आप प्रमोट। यूट्यूब में 3 बेसिक प्रमोशंस आप कर सकते हो। यूट्यूब में वीडियोस प्रमोट करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं और यूट्यूब पोस्ट। कंटेंट वाइज ये 3 पॉसिबिलिटीज है। कंटेंट जो किस तरह का कंटेंट होगा, तो यूट्यूब में वीडियोस होंगे। तो वीडियोस एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होता है जिसको आप अपलोड करोगे, और वीडियो लाइव हो सकता है, यानी कि आप जैसे लाइव टीवी पे जाते हैं या लाइव फेसबुक होता है, वैसे आप यूट्यूब लाइव भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वीडियो कंटेंट। एंड थर्ड वीडियो यूट्यूब पोस्ट। यूट्यूब पोस्ट जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो देन यू हैव द ऑप्शन टू डू द पोस्ट। जैसे सोशल मीडिया पे क्रिएट पोस्ट जिसमें इमेजेस और टेक्स्ट, वीडियो नहीं है, सिंपल पोस्ट है, टेक्स्ट और इमेजेस का कलेक्शन है, तो आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन पोस्ट वाला ऑप्शन सबके पास अवेलेबल नहीं होता है जब तक कि आप टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो। तो कंटेंट वाइज तो यही 3 है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव एंड पोस्ट। अब प्लेटफॉर्म कंटेनर वाइज ये कहाँ पे प्रमोट होगा, तो आप वीडियो करोगे तो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। वो सारे वीडियो कंटेन कहाँ रहते हैं, चैनल में, तो चैनल ऑप्टिमाइजेशन। वीडियो को आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, तो प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है
इन सारे पे नंबर ऑफ आपका जो एंड है वो यूट्यूब का पूरा स्ट्रैटेजी इज टुवर्ड्स इंक्रीज दी वॉच टाइम। जिस भी चैनल पे, जिस भी वीडियोस पे, जिस भी प्लेलिस्ट पे जिसका कलेक्टिव वॉच टाइम ज़्यादा होगा, यूट्यूब उसके वीडियोस को ज़्यादा सजेशंस में देगा, ज़्यादा सर्च रिजल्ट में देगा, ज़्यादा उसको यूट्यूब गूगल में भी शो करेगा। तो यू हैव टू, अगर आप सब कुछ को छोड़ दो, आपको केवल एक वर्ड यूट्यूब में ध्यान रखो, तो एवरी डे गो एंड चेक योर वॉच टाइम। वॉच टाइम बढ़ रहा है क्या, वॉच टाइम बढ़ रहा है क्या, वॉच टाइम बढ़ रहा है, वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा, ऐसा क्या करें कि वॉच टाइम बढ़ जाए। तो वॉच टाइम कैसे बढ़ सकता है, आपने शुरू में ही बता दिया। यूट्यूब जैसे स्टार्ट हुआ सबसे पहले आपने बता दिया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। ओके, डू यू वांट टू लर्न अबाउट फेसबुक रूम, सो लेट्स लर्न अबाउट फेसबुक रूम। सो आपने बता दिया कि फेसबुक रूम के बारे में जाना है, तो आपके लिए वीडियो यूजफुल है। And then you are going forward and then said, okay, I'm Bhavna, I have 13 years of experience and I'm going to share about the Facebook room, the new feature in the Facebook. And then you are going into the details कि okay, Facebook में ये 5 फीचर्स होते हैं, आप वीडियो चैटिंग कर सकते हो, 50 लोग आ सकते हैं इसमें, इन प्रोज क्या एडवांटेज, ये 5 एडवांटेज हैं, ये 3 डिसएडवांटेज हैं, ये फ्री है, ये कॉस्ट लाइक सिक्योर नहीं है, ये 50 लोग ही कर सकते हैं, ये लाइक टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। So now you are giving the details and at the end of the call to action. Do you like this video? Like, comment, share. Do you like this video? You want to go through the full-fledged Facebook marketing course? WhatsApp at this number, visit this website, subscribe to our channel. So now the next is call to action. तो ये है यूट्यूब में। अब ये यही काम आप थोड़ा पैसे देकर भी कर सकते हैं। वीडियो आपने बना लिया, वीडियो पे ऑर्गेनिकली कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो ये ट्रैफिक आएगा आपका, जब वीडियो सजेशंस में आएंगे तो ट्रैफिक आ सकता है, वीडियो कोई सर्च कर रहा हो रिजल्ट में आए तो आ सकता है। इस वीडियो को आपने दूसरे मीडियम पे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब जगह शेयर किया हुआ, वहां से ट्रैफिक आ सकता है। इस वीडियो पे अगर आप इस वीडियो को पैसा दे के प्रमोट कर दो तो ट्रैफिक आ सकता है, राइट। तो फिर अगेन आई हैव समराइज्ड द एंटायर यूट्यूब। whether you got the answer or not? Yes, ma'am. कंटेंट का आपने पूछा था, तो कंटेंट यही चीज हो सकती है। उसके अलावा और कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पे, जो यूजर जनरेटेड कमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूजर जनरेटेड कंटेंट का बहुत ज्यादा है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंटेंट का क्राउड सोर्सिंग करा पाओ, कंटेंट का क्राउड सोर्सिंग का मतलब है कि आप उस प्लेटफॉर्म के यूजर को इनकरेज कर पाओ कि उसका प्लेटफॉर्म पे वो अपना व्यूज और कंटेंट शेयर करे, तो उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आप कमेंट के लिए, डिस्कशंस के लिए लोगों को करते हो, तो इंगेजमेंट भी बढ़ रहा है और कंटेंट, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन इज कमिंग ऑन डिजिटल मीडिया टू सी द कंटेंट। मतलब 7 मिलियन पीपल हैं, 7 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो आइडिया इज दैट कि 7 बिलियन स्टोरीज हैं, 7 बिलियन व्यूज हैं, 7 बिलियन रिप्लाईज हैं, 7 बिलियन यूनिक व्यू पॉइंट है, 7 बिलियन अपने अपने थॉट्स हैं। सो नाउ पीपल वांट टू नो दैट कि आपका क्या विचार है इस पे। मतलब ठीक है, मैंने रिया चक्रवर्ती का वीडियो देखा, वीडियो के बाद आप देखते होंगे लोग उसके कमेंट्स को पढ़ते हैं, they don't know who is doing that comment, what is the agenda of doing the comment, why they are doing this comment, why they are investing their time, they don't know, but what they are feeling is that कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो इस बारे में। तो जब जनरल पब्लिक का कंटेंट वहां पे आने लग जाता है तो एंगेजमेंट उस प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड बढ़ जाता है। तो हर प्लेटफॉर्म उस एक्टिविटी को इनकरेज करता है कि किसी भी तरीके से आप यूजर जनरेटेड कंटेंट जनरेट करो। आपने 1 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन उस पर अगर 1 लाख कमेंट्स हैं तो दैट इज फैंटास्टिक, बिकॉज 1 लाख कमेंट का मतलब है कि उतना लोगों ने टाइम स्पेंड किया है उस पर, इतना एफर्ट लिया है उसको कमेंट को लिखने का, और जितने लोग यूजर आएंगे उस कमेंट को रीड करने में टाइम इंगेज करेंगे। सो दीज प्लेटफॉर्म दे नो वेरी वेल द ह्यूमन साइकोलॉजी को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और मार्केटिंग, आपको अगर मार्केटिंग सीखनी है तो आपको भी ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे ट्रिगर होता है, कैसे एक्शन लेता है, कैसे किसी चीज पे डिसअपॉइंट होता है, कैसे ट्रस्ट करता है, कैसे विट्रायल फील करता है, कहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। सो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप बेटर जानोगे तो
कंटेंट लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप उस फैक्टर को इंक्लूड करोगे. So all these platform are playing with मतलब they have the top psychologist in place to decide that कि human being के brain को कैसे capture करना है. They know that okay red color is that, they know that कि जैसे notification आता है you feel the trigger कि उसको देखना है कि इसमें क्या है. So if you can explore, you can explore a book called Hooked, HOOKED, Hooked. Right, तो Hooked में you will know that कि जितनी top social media websites हैं उसके पीछे की psychology क्या है, how they are, on what basis why they are so much successful. Like we always I come across with मैम मुझे Facebook जैसा कुछ बनाना है, मुझे YouTube जैसा कुछ बनाना है. उसके पहले आपको वो रिसर्च करना होगा कि why these platforms are so successful. Right, so at the end of the day everything is about users need. आप यूजर की कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हो, आप उनके इंटरटेनमेंट की नीड को फुलफिल कर रहे हो, उसके जॉब सर्च की नीड को फुलफिल कर रहे हो, आप उसके लीड जनरेशन की नीड को फुलफिल कर रहे हो, आप उसको मार्केट में रिकॉग्नाइज करने में ब्रांडिंग के नीड को कुछ ना कुछ यूजर की नीड है उसको आपको फुलफिल करना. दैट इज द ओनली थिंग. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप किसी एक बंदे की पूरी कर सकते हो. एक बंदे की पूरी कर सकते हो तो वैसे उस तरह के 100, 50, 200, 1 लाख वैसे और भी बंदे हैं. You have to reach out those 1 lakh people and you have to serve the same way to those 1 lakh people. If one person can pay you, so 1 lakh more people can pay you. If you can pay me for this training, so I'm sure that 10 lakh people are more there who सारे content होने के बाद YouTube में endless content हैं. Even they are looking for someone who can give with the easy to wear to understand, और वो बोरिंग वीडियो देख करके नहीं, वो अपने पर्सनल स्टोरीज के साथ आप उसको कम्युनिकेट कर पाओ. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो. एक आदमी का सॉल्व करो और बी श्योर एक आदमी अगर पे कर रहा है तो कहीं ना कहीं और भी वैसे लोग हैं जो आपको पे करेंगे उस काम के लिए. So here we are coming back to the Amazon. So here we are talking about affiliate. Affiliate is all about when you are promoting others product to earn commission. तो अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के आप फुटर में जाकर देखना एफिलिएट, या नहीं फुटर में भी तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके Ctrl+F करके सर्च करना एफिलिएट. तो जैसे ही अगर एफिलिएट वर्ड कहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कमीशन देने के लिए आपको तैयार है. सो राइट नाउ आई एम गिविंग द ग्लिम्प्स ऑफ Amazon. सो Amazon पे आप Ctrl+F मैंने किया, अगर एफिलिएट यू कैन सी दैट बिकम एन एफिलिएट. तो कहीं पे भी एफिलिएट वर्ड दिख रहा है या इसका मतलब ये है वो प्लेटफॉर्म आपको, आप इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करो, जितना प्रोडक्ट इसका सेल करवाओगे उतने कमीशन आपको मिलेंगे. सो that's why affiliate is also called performance based marketing. Performance means सेल होगी तभी. Majority of the affiliate network is performance based. बहुत कम ऐसे कुछ हैं जो कि फॉर्म फिलअप के लिए भी आपको पैसे देते हैं, बहुत सारे हैं जो केवल एड्स दिखाने के पैसे देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एफिलिएट नेटवर्क इज विल पे यू ओनली आफ्टर द सेल. सो हियर रिकमेंड प्रोडक्ट्स अर्न एडवर्टाइजिंग फी. Amazon के प्रोडक्ट को अपने नेटवर्क में रिकमेंड करो और आपको उसका कमीशन मिले. So either you can click on sign up when you are doing for the first time, you can click on sign up. So here आपका अगर ऑलरेडी Amazon में आप साइन इन हो तो वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले लेगा, अदरवाइज Amazon का यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा पहले कि आप Amazon का जो Amazon इज द मोस्ट, Amazon का मिशन है. डू यू नो, एनीवन नो द मिशन फॉर Amazon? Amazon का मिशन पता है आपको? Amazon का मिशन है टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. Amazon is trying to be the most customer-centric company of the world.
राइट। तो अमेजोन का एक कस्टमर सेंट्रिक आप ये देखोगे कि अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो, यू नीड सेम यूजर आईडी पासवर्ड। अमेजोन एफिलिएट यूज करो, अमेजोन एसोसिएट यूज करो, अमेजोन सेलर सेंट्रल यूज करो, अमेजोन लाइक प्रोडक्ट सर्च यूज करो, अमेजोन AWS, अमेजोन इतने प्रोडक्ट हैं, बट सारे प्रोडक्ट के लिए आपको एक ही यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। So both of you are here with me. Can we proceed now? So यहाँ पे जाओगे तो आपको अमेजोन का यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। आप यूजर अभी चूंकि ऑलरेडी लॉगिन इन है तो यहाँ पे भावना दिख रहा है, अदरवाइज आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपने जो भी अकाउंट बनाते समय या प्रोडक्ट बाय करते समय जो एड्रेस दिया होगा वो बोल रहा है कि इसी एड्रेस पे आप यही फिजिकल एड्रेस पे आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, अदरवाइज यू कैन कीप द सेम। इसी एड्रेस पे आपको पेमेंट मिलेगी। इफ यू द पे लिस्टेड अबव, यस। अगर कोई दूसरा एड्रेस यूज करना है तो समवन एल्स आप कर सकते हो। आपका यूएस का टैक्स पेमेंट है तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो कर दोगे, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम द अमेजोन। तो अगर आपका 30,000 से ज़्यादा कमीशन होता है तो वो TDS काट के देगा, और TDS कहाँ जमा कराएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कराएगा। तो दैट्स वाई आपको बताना पड़ेगा कि किस कंट्री को आप बिलोंग करते हो। उस कंट्री का जो भी टैक्सेशन का लॉ होगा वो अप्लाई होगा इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम अमेजोन फ्रॉम इन दैट कंट्री। तो आपको जो प्रमोशन करना है वो इंडिया में प्रमोशन करना है। आपका यूएस अकाउंट नहीं है, आप यूएस के टैक्सेशन के अंदर नहीं आते हो तो नो कर दोगे। सो नाउ अमेजोन विल आस्क यू कि ठीक है आप बताओ कि कहाँ अमेजोन के प्रोडक्ट को कहाँ प्रमोट करोगे। डू यू हैव अ वेबसाइट टू प्रमोट अमेजोन? डू यू हैव अ मोबाइल एप्स टू प्रमोट अमेजोन? सो आप अमेजोन के प्रोडक्ट को कहाँ प्रमोट करने वाले हो? तो हियर यू हैव टू गिव देम द URL। अब ये जो URL है वो कुछ भी हो सकता है। आपका फेसबुक पेज का URL हो सकता है, यूट्यूब चैनल का URL हो सकता है, ब्लॉग का URL हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आई एम गोइंग टू यूज सपोज यूट्यूब चैनल का URL मैं यूज करती हूँ। आपके यूट्यूब पे जाओगे, आप साइन इन कर लेना, और जो यूट्यूब चैनल का URL है वो भी डाल सकते हो। Let's suppose right now I am giving ये मेरा ब्लॉग का वेबसाइट है। आई एम गिविंग दिस वेबसाइट वेयर आई विल प्रमोट। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप भी दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कोई ये दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक ना एक वेबसाइट देनी पड़ेगी। आपका फेसबुक पेज का URL आप डाल दो, यूट्यूब चैनल का URL डाल दो, तो डाल करके देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। वर्डप्रेस पे जो आपने फ्री वेबसाइट बनाई थी वो डाल दोगे। लेकिन आप नाउ अगर वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट डाली तो अब वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट आपको अमेजोन का लिंक डालने नहीं देगा। वो फ्री वाली वेबसाइट में अमेजोन एफिलिएट लिंक डालने नहीं देगा, मतलब इमेजेस वगैरह नहीं शो करने देगा। जबकि यूट्यूब में आप अमेजोन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हो, फेसबुक में अमेजोन का एफिलिएट लिंक अपने पोस्ट में शेयर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो प्रोफाइल लिंक में शेयर नहीं करने देगा। So that way you can decide. Now you are deciding you are opening up, जैसे वो ट्रेडर्स वाला जो बिजनेस होता है ना, अगर मान लो आपको हीरो होंडा का शोरूम खोलना है तो यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, आप क्या कर रहे हो, केवल सेल कर रहे हो। तो इन द सेम वे आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर रहे, प्रोडक्ट का शिपमेंट का हेडेक आपका नहीं है, प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस आपका नहीं है, प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी हेडेक आपका नहीं है, केवल प्रोडक्ट सेल होना है। अगर सेल हो गया तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इन अ वे यू आर सेलिंग, जैसे ग्रोसरी स्टोर आप खोल रहे हो, तो ग्रोसरी स्टोर में आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप केवल एक लोकेशन स्टोर खोल रहे हो, स्टोर में आगे सामान रखोगे, लोग आएंगे सामान खरीद के ले जाएंगे, जितना सामान खरीद के ले जाएंगे उसका पर मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो, लेकिन उस ऑनलाइन स्टोर में आप ये बोल रहे हो कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट कर रहा हूँ। तो आपके ऑनलाइन स्टोर का कोई लोकेशन तो होना चाहिए ना, कहाँ पे ऑनलाइन स्टोर खोलोगे?
कहाँ पे अमेजोन के प्रोडक्ट को स्टोर करके रखोगे? तो फिजिकल स्टोर नहीं, वो स्टोर आपकी वेबसाइट हो सकती है, मोबाइल ऐप हो सकता है, आपका फेसबुक पेज हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है। तो वो आपका ऑनलाइन स्टोर हो गया जहाँ पे आप अमेजोन के प्रोडक्ट को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, लोग बाय करेंगे। तो आपका स्टोर आईडी इट कैन बी एनीथिंग, जैसे मैंने बताया कि आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो, बट यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर आप अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं, एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए। स्टोर का नाम कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव। So let's suppose I'm giving the store name Digital Seeker, Digital Seekers। वेबसाइट है भावना। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। और व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, किसके बारे में है? लेट्स सपोज आई एम सेइंग पर्सनल डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल so digital marketing and personal development। तो आपकी वेबसाइट जो आप स्टोर खोल रहे हो, स्टोर आप जिस वेबसाइट पे अमेजोन का प्रोडक्ट आप, वो टॉपिक क्या है? तो आई एम जस्ट शेयरिंग डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग एंड पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉग, राइट। सो व्हाट इज द प्राइमरी टॉपिक, बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का प्राइमरी टॉपिक क्या है? सो इट इज अबाउट एजुकेशन, बुक्स, you can think any of, right now I'm going for education। सेकेंडरी टॉपिक आपकी मर्जी, आप डालना चाहो, आपकी मर्जी है नहीं डालना चाहो। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स एज वेल। अब अमेजोन के कौन से प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो? सो आप बुक्स प्रमोट करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रमोट करना चाहते हो, मूवी, म्यूजिक, क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, ग्रोसरी, हेल्थ, बेबी टॉयज, कंप्यूटर, ऑफिस, होम एंड गार्डन। आप अगर सबको प्रमोट करना चाहते हो, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन कि आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो नहीं प्रमोट करेगा। आप चाहो तो सब कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में जो प्रमोट करना है वो कर सकते हो। देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। इट्स अमेजोन इज ऑल अबाउट कि आप जो सेल करोगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। बट राइट नाउ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन डिजिटल एफिलिएट राइट नाउ, सो जब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो यू कैन थिंक ऑफ डूइंग वन मोर थिंग कि आप डिजिटल प्रोडक्ट का करो या फिजिकल प्रोडक्ट का करो। डिजिटल प्रोडक्ट का करोगे तो क्या होगा कि यूजर्स को इमीडिएट वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, राइट। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके पास आपने इतनी मेहनत से ऑडियंस बनाई है और आपने अमेजोन का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया, वो प्रोडक्ट उसको टाइम से नहीं मिला, सो दे मे स्टार्ट कंप्लेनिंग टू यू और समथिंग। सो फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, आपका कमीशन भी तब आता है जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, जो रिटर्न का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तब आपके पास कमीशन आता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स हो गए, कोर्सेज हो गया, वीडियो हो गए, म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गए, या ऑडियो हो गया, या सॉफ्टवेयर्स हो गए, या मोबाइल ऐप्स हो गया, या तो जितने डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं दैट विल लाइक यू व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद एफिलिएट मार्केटिंग, इनिशियली आई विल प्रेफर टू स्टार्ट विद द डिजिटल प्रोडक्ट रादर देन द फिजिकल वन। डिजिटल प्रोडक्ट का कमीशन भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने एक बार कोई कोर्स बनाया और मैं कोर्स आपको बोल रही हूँ कि ठीक है आपको ये कोर्स पसंद आया, आप किसी और को रिकमेंड करना चाहते हो तो रिकमेंड करो, और तो हर रिकमेंडेशन पे आपको कमीशन मिलेंगे। तो मैंने जब एक बार अगर कोर्स बना लिया तो उस कोर्स को एक बंदा यूज करे या 100 बंदे यूज करे तो कोर्स की कॉस्टिंग मेरी तो नहीं बढ़ रही है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या है, मैं एक बुक दे रही हूँ तो हर बुक को प्रोड्यूस करने की कॉस्टिंग है। डिजिटल प्रोडक्ट में एक बार आपने कोर्स प्रोड्यूस कर दिया तो फिर मेंटेनेंस की जरूरत है, अप टू डे अपडेशन की जरूरत है, लेकिन बार बार आपको कोर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जनरली डिजिटल प्रोडक्ट में कमीशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इवन यहाँ तक होते हैं, जैसे मैंने बहुत बेसिक कोर्स बनाया है, सपोज एक बहुत बेसिक सा 1 घंटे का कोर्स बनाया और उसकी कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज है, तो आई मे से दैट कि ठीक है 100% कमीशन आपको मिल जाएगा, because I might be promoting that 200 course just to show the quality of the work, and whoever will go for that course I will pitch them for the higher product। उनको मैं 20,000 का 30,000 का प्रोडक्ट मैं पिच करने वाली हूँ। तो इनिशियली आई कैन पे, मेरा जो लीड मैग्नेट है उसको मैं उसमें 100% कमीशन पे कर देते हैं लोग। तो डिजिटल प्रोडक्ट में कमीशन ज़्यादा होता है।
सबसे ज्यादा इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मिलियनायर बिलियनायर जितने लोगों ने भी पैसे बनाए हैं, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है एफिलिएट मार्केटिंग को। इंटरनेट पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसे बनाए हो और वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हो, राइट। लेकिन अब एफिलिएट मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। 2020 में भी एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेंडिंग है और फ्यूचर में भी रहेगा, बिकॉज जब तक मार्केट है, जब तक मार्केट इकोनॉमी है, जब तक प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तब तक प्रोडक्ट को सेल करना एक अपने आप में चैलेंज है। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो हमेशा ही रहेगा, बट नाउ people want to buy from more assurity, more trust, more like जो आपने किसी ऑनलाइन पे टेस्ट किया हो उसके रिव्यूज के बेसिस पे हम बाय करना चाहते हैं। तो in that case you have to build your own community, you have to build your own audience, you have to build your own family, own network, and in that network, in that process you are doing the affiliate marketing. So let's suppose I have the community of 5,000 people, and then I am saying कि okay, आपने कोर्स तो किया लेकिन ये बुक्स जो है वो बहुत अच्छी है, आप पढ़ लेना। तो उस 5,000 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो बुक को बाय करेंगे, बिकॉज दे ट्रस्ट मी। अगर मैं उनको बोलूँ कि ये कोर्स का आप करके देखो, कोर्स बहुत अच्छा, किसी और के कोर्स को अगर मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर इफ आई टेस्टेड दैट कोर्स एंड माय नेटवर्क इज ट्रस्टिंग मी, तो मैं जब कोर्स रिकमेंड करूंगी तो चांसेस है वो बाय करेंगे। अगर मैं कोई टूल्स रिकमेंड करूंगी तो चांसेस है जिनको भी यूज आएगा वो बाय करेंगे। तो बिकॉज आई हैव नाउ द एफिलिएट मार्केटिंग रादर देन जनरेटिंग द एफिलिएट लिंक एंड स्पैमिंग द एंटायर इंटरनेट। अभी जो जनरली आप देखते हो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी एफिलिएट लिंक उठा लिया और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सारे जगह स्पैम कर रहे हैं, मतलब बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वो लिंक को शेयर कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं बाय करो बाय करो बाय करो। तो उस तरीके से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। मतलब बहुत थोड़ा बहुत आ भी गया लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप सही से एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो गिव प्रॉपर टाइम टू इट, बिल्ड योर कम्युनिटी ऑफ पहले टारगेट फॉर 100 people, then 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 million, billion. So start building the community. Once you have the community and the community is and you are serving the community with your information and educations, and during that service you are giving them a product and services which is going to help वो इकोसिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक ऐसा इकोसिस्टम डिजिटल मीडियम में अगर कोई बंदा है तो उनको इमेजेस बनाने ही हैं, उनको कैनवा यूज करना ही पड़ेगा, उनको ऑडियो बनाना पड़ेगा, उनको फेसबुक सीखना पड़ेगा। तो ये इकोसिस्टम है, उनको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, उनको वेबिनार करना पड़ेगा, उनको पॉडकास्ट करना पड़ेगा, उनको कैमरास चाहिए, उनको ट्राइपॉड्स चाहिए, उनको लाइक ग्रीन क्रोमा स्क्रीन्स चाहिए, वो लैपटॉप बाय करेंगे, वो इंटरनेट कनेक्शंस बाय करेंगे, वो मोबाइल बाय करेंगे। तो डिजिटल इकोसिस्टम में है तो उनको ये सारी रिक्वायरमेंट है। उनको हो सकता है वो कुछ भी खरीदने से पहले अपने कम्युनिटी से पूछे कि अच्छा एसईओ करने के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है, या वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है, या सबसे अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किस मोबाइल का कैमरा अच्छा है। So now you have that ecosystem, and in that ecosystem to support that community, to help that community, to grow that community, you are recommending some product and services. Why you are recommending? Because you are not manufacturing. मैं कोई टूल्स कीवर्ड रिसर्च के टूल्स बना नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छा कीवर्ड रिसर्च का टूल है वो मैं सजेस्ट कर रही हूँ अपने कम्युनिटी को। मैंने कोई वीडियो एडिटिंग टूल नहीं बनाया है, लेकिन कैनवा मुझे सबसे अच्छा लगा है तो मैं कैनवा सजेस्ट कर रही हूँ अपने कम्युनिटी को। मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ऑडियो बुक का, तो मैं अपने कम्युनिटी को ऑडिबल सजेस्ट कर रही हूँ, एंड ऑडिबल इज गोइंग टू पे मी फॉर द कमीशन। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, फर्स्ट बिल्ड द कम्युनिटी एंड देन रिकमेंड द प्रोडक्ट। Both of you are with me, just write with you if as if I'm only talking and talking. आप लोग दोनों? मैम we are there. Okay. So here मतलब ऐसे सिंपल बिजनेस में, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आपने सुना होगा कि नेटवर्क बिजनेस का मतलब है नेटवर्क, योर नेट वर्थ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ योर नेटवर्क। अगर आप एफिलिएट कभी भी MLM वगैरह कभी कोर्स MLM वगैरह कहीं ज्वाइन किया होगा ना, एमबे, तो उसमें वो बहुत आप ये चीज रिपीट करते हैं, योर नेट वर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क का स्क्वायर। सेम हियर, बट योर network is your network to support each other, your network to build a better place with each other,
It's sharing and caring. It should not be only money making. In that process, you are going to, money should be the product, the services you are offering. So what type of website or mobile app you have? So do you have a blog or comparison search engine? These kind of website you can create to showcase your affiliate product more comfortably. Amazon, अगर आपके पास ब्लॉग है तो आप Amazon के affiliate product को दिखाओ. शॉपिंग कंपैरिजन है तो आप वो, आपने देखा होगा जब भी मोबाइल बाय करने जाते हो, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू बाय मोबाइल, बेस्ट so business insider review. जनरली आपको यहीं पे मिल जाएगा, अमेजोन जो कंपैरिजन सर्च इंजन होते हैं वहीं पे आपको लिंक मिल जाता है. देयर वी कैन गो एंड सी दैट इफ आईफोन 11, सो दे आर मेकिंग यू लैंड ऑन समवेयर एल्स. एप्पल की वेबसाइट पे लेके जा रहा है. सो अब एप्पल में ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग इंटीग्रेटेड है कि नहीं है, दैट यू हैव टू सी कि वेदर दे आर अर्निंग. अगर एफिलिएट मार्केटिंग होती तो इसके आगे यस एफिलिएट मार्केटिंग है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दिस वन? affiliate id is equal to and cid is equal to. तो ये दोनों ही ये शो कर रहा है कि दिस इज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग. ये जो लिंक बन गया ना वो एफिलिएट आईडी का लिंक बन गया. इन द सेम वे नाउ द एफिलिएट आईडी इज द सेम वन. कैन यू सी द एफिलिएट आईडी? इट्स एफिलिएट आईडी इक्वल टू P239 and here affiliate ID is equal to P239. अब ये P239 है ना, आपको इस वेबसाइट पे कोई भी लिंक खोल दोगे आपको उसमें P239 दिख जाएगा और ये शो कर रहा है कि ये एफिलिएट आईडी है. एफिलिएट आईडी इज इक्वल टू समवेयर इट विल बी P239 राइट. तो इसका मतलब ये है कि दिस दे हैव द एफिलिएट पार्टनर ऑफ Amazon. आप कुछ भी कर दोगे कहीं पे भी वो लेके जा रहा है, अगर वहां लेके जा रहा है इसका मतलब है कि अब ये बेस्ट बाय, तो बेस्ट बाय क्या है, फिर बेस्ट बाय का एफिलिएट आईडी उसने, अब बेस्ट बाय का एफिलिएट आईडी उसने बेस्ट बाय पे अलग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है. सो एवरी प्लेटफॉर्म यू हैव टू क्रिएट योर एफिलिएट स्टोर. अमेजोन का प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो वो अलग एफिलिएट आईडी देगा. एप्पल के प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा है तो एप्पल अलग एफिलिएट आईडी देगा. अगर बेस्ट बाय के प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं तो बेस्ट बाय अपना एफिलिएट आईडी देगा. So they have the affiliate partnership with Best Buy as well as with Apple, right? So just imagine Business Standard is so big company. Business Insider, I think अगर ये कोई वो reputed Times of India वगैरह group का अगर Business Standard, I don't know Business Insider, लेकिन you know that कि these are coming on the top. P239 affiliate ID is equal to P239. So this way you can see that ki they are doing the affiliate marketing, but what they are doing for user, they are the blog. They are giving you the product review, gadgets ka review de rahe hain. This is the top website, pehli website. In the same way you can go to the Tech Radar. It's a 100% blog hai. So news. So they are giving you the, so now they are best phone, all these are the keywords they have done. And now अब इस blog को optimize करने के लिए वो ये भी करेंगे, SEO भी करेंगे. So now they have the price comparison. Flipkart पे आपको देखना है Flipkart का affiliate चल रहा है यहाँ. Flipkart affiliate ID क्या है? Affiliate ID is equal to this one. कहीं ना कहीं यही वाले सारे कॉमन आ रहे होंगे. ये
टेकराडार जो है ये कंपनी है जो इसको प्रमोट कर रही है इस प्रोडक्ट? नहीं, कंपनी कौन सी होगी? फुटर में कोई ऑफिशियल कंपनी तो कुछ और होगी, आप देखोगे फुटर में अच्छा कोई कंपनी होगी, उन्होंने वेबसाइट बनाई है टेकराडार, वेब अच्छा कंपनी कुछ और हो सकती है। अच्छा फ्यूचर पब्लिशिंग लिमिटेड कंपनी, एक्चुअल कंपनी नेम इज फ्यूचर पब्लिशिंग लिमिटेड। अब ये कंपनीज जो होती है ना, वो आप देख लो कि नोएडा में कम से कम 1000 कंपनीज ऐसी होंगी, 1000 कंपनी ऐसी होंगी, और वो 8000, 10000, 12000, 15000, 20000 करके जो मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन लोग करते रहते हैं ना, जो जर्नलिज्म वगैरह करते हैं, जिनका इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से जिन्होंने पास आउट किया हुआ है, जिनका कंटेंट राइटिंग, उनको वो बहुत कम पैसे में हायर कर लेते हैं। एंड उनके पास 100 लोगों की टीम होती है केवल ये कंटेंट राइटिंग के लिए। इस तरह का ये जो कंटेंट कंपनी है एवरीडे। इसके पास होंगे अप्रोक्सीमेटली ऐसे लोग जो इनके लिए कंटेंट बना रहे हैं? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि उनके पास कंटेंट राइटर्स की टीम होती है, और शुरुआत में तो उन्होंने ऐसा किया होगा कि मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाते होंगे और तब इसके रिव्यू लिखते होंगे। लेकिन जब उनकी कंपनी बिग हो गई होगी और बहुत ज़्यादा, मतलब सुपर एफिलिएट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने लग गए होंगे, तो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट भेज देती है, और जैसे ही प्रोडक्ट भेजती है या डमी भेज दे, डेमो के लिए भेज देती है, फिर उनको उनके टीम में ये एलोकेट हो जाता है। और वो जो कंटेंट राइटर हैं, उनका काम ही होता है कि एवरी डे दे हैव टू प्रोड्यूस द कंटेंट, 5000 वर्ड्स का कंटेंट प्रोड्यूस करना है इस टॉपिक पे। तो वो अपने आप को बोलते हैं कि वी आर टेक जर्नलिस्ट, टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हम लोग हैं, राइट। लेकिन उनको पता है कि जो यूजर्स आ रहे हैं वो केवल और केवल कंटेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट को कंटेंट देखने के पीछे भी तो उनका कुछ ना कुछ तो एजेंडा है। आज नहीं कल, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद उनको बाय करना हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे अमेजोन का देखो, अगर इफ आई एम गोइंग टू द अमेजोन, so they have done the affiliate program with the Amazon। Amazon का affiliate ID इनका क्या है? 5 मिनट, 5 मिनट में, 1 मिनट में दे, 1 मिनट। So here you can look for their affiliate ID, कहीं ना कहीं उनका affiliate ID होगा। I think this is their affiliate ID is this one tag. हेलो, गुड इवनिंग, फिर से बात कर दिया। क्या बात करना है, बोलिए। वाईफाई कनेक्शन के लिए कॉल किया था, नेट कनेक्शन रिचार्ज कराएंगे, हैशपैक का भी ऑफर चल रहे हैं। क्या ऑफर है? ऑफर में ये है कि अभी आपको 550 का प्लान ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 50 Mbps की स्पीड है, अनलिमिटेड डेटा है, 1 मंथ की वैलिडिटी है। अच्छा चलिए, मैंने आपको 1 घंटे मुझे कॉल कर दीजिए, मैं बताती हूँ। ठीक है मैम। राइट, तो ये यही ऐसे ही आपकी आईडी भी आपको बनानी होगी। आप एक आईडी दोगे, ये आप जब भी एफिलिएट, आपने ये प्रोडक्ट डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोडक्ट व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपनी वेबसाइट्स में, ब्लॉग में, मेल में, लिंक्डइन में, अपने फैमिली को, अपने रक्षाबंधन में किसी को गिफ्ट देना है, दिवाली में किसी को गिफ्ट देना है, मेरी बहन खोज रही है कि उसको आईफोन लेना है, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट कि ओके ये 5 आईफोन में से कोई एक ले लो, और 5 आईफोन सेलेक्ट करोगे तो उसमें जो आप सब में आपका एफिलिएट लिंक इंसर्ट हो जाएगा, अगर एफिलिएट डैशबोर्ड से वो लिंक सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस लिंक पे जो भी प्रोडक्ट करेगा, बाय नाउ करेगा, उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। सो हियर वी आर कमिंग बैक टू दी दिस वन। तो आपने क्या किया यहाँ पे, एफिलिएट आईडी, ये जो अब जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल सीकर्स बना दिया है, तो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक बनेंगे उसमें डिजिटल सीकर्स वर्ड आएगा। दिस इज माई एफिलिएट आईडी। अमेजोन में मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगी प्रमोशंस के लिए कि मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना अपने फ्रेंड, फैमिलीज, नेटवर्क, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह शेयर करना चाहती हूँ। इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे कैन बाय। तो उस जब वो क्लिक करेंगे और अगर वो पूरे, ऐसा क्या होता है भी सारा का सारा डायनामिक पार्ट हट जाता है। हियर यू कैन सी दैट दिस इज माय वेबसाइट, तो इसमें है, लेकिन ये सारे में जो डायनामिक पोर्शन है वो हट जाता है। ये देखो एक्चुअल वेब पेज है, तो इसमें कोई डायनामिक यूआरएल नहीं है। इसमें देखो, इसमें ये इसके बाद का जो पोर्शन है वो डायनामिक यूआरएल है। इस पोर्शन को अगर मैं हटा भी दूं तो आप पेज खोलोगे तो एज इट इज रहेगा, कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा।
देखो कंटेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वो एक एफिलिएट आइडेंटिफिकेशन थी, पेज कंटेंट वही है। उसी तरह आप इसमें भी, आप अगर डायनामिक यूआरएल हटा दो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी पोर्शन है, तो कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता। अब ये बिल्कुल वही है। अब इसके आगे मैं एफिलिएट आईडी डाल करके क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एफिलिएट आईडी इज इक्वल टू रिम्पल डाल दूं तो भी यही पेज खुलेगा। इसमें एफिलिएट आईडी इज इक्वल टू, ये देखो मैंने एफिलिएट आईडी रिम्पल डाल दिया तो भी यही पेज खुल रहा है। अब यहाँ पे एफिलिएट आईडी डाल करके मैं प्राची डाल दूं तो भी यही आईडी खुलेगी, राइट। लेकिन नाउ आई कैन नो दैट कि ये मेरे लिए यूआरएल 1 है और रिम्पल वाला यूआरएल 2 था। नाउ इन माय ट्रैकिंग सिस्टम, इन माय एनालिटिक्स, इन माय एफिलिएट ट्रैकिंग मैकेनिज्म, आई कैन नो दैट कि इस वाले यूआरएल पे कितने क्लिक्स आए और उस वाले यूआरएल पे कितने क्लिक्स आए, इस वाले यूआरएल से कितने सेल्स हुए, उस वाले यूआरएल से कितने सेल्स हुए। तो वो ट्रैकिंग में जितने भी एफिलिएट ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो कुछ भी देख रहे हो दैट इज द एफिलिएट आईडी, मतलब कहीं ना कहीं वो डायनामिकली जनरेटेड यूआरएल है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो कुछ भी रहता है उसको आप हटा देते हो तो पेज का कंटेंट चेंज नहीं होता है। यानी कि आपके पास जितने एफिलिएट पार्टनर हैं, हर पार्टनर को सेम ही कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, लेकिन सबके लिए अलग अलग यूआरएल है। ये सबके लिए सेम ही कंटेंट शेयर हो रहा है, सारे अपने अपने नेटवर्क में एक ही पेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट ओनर को पता है कि सबकी आईडी अलग अलग है। तो जनरली क्वेश्चन मार्क के बाद, ये जो क्वेश्चन मार्क का पोर्शन होता है उसके बाद जो होते हैं वो आपकी एफिलिएट आईडी। तो देखो पेज में कोई चेंज नहीं, पेज तो यही है, ओरिजिनल पेज यही है। अब इसके आगे मैं एफिलिएट आईडी इक्वल टू रिम्पल, एफिलिएट आईडी इक्वल टू भावना, एफिलिएट आईडी इक्वल टू परिष्कृत, एफिलिएट आईडी इक्वल टू जो भी डाल दूं वो पेज कंटेंट सेम ही रहेगा, लेकिन सबकी अलग अलग दुकान खुल गई। Does it making sense all this? ये देखो इसका भी क्वेश्चन मार्क हटा दिया, पेज वही रहेगा, पेज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके एफिलिएट से लोग आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो और आप उसके में जाके देख लो, अगर डायनामिक यूआरएल हटा दोगे तो फिर उस बंदे को आपके सेल का कमीशन उसको नहीं मिलेगा। राइट। सो एक्चुअल पेज तो ये है, लेकिन यहाँ पे एफिलिएट आईडी सबकी, ये ट्रैकिंग आईडी, एफिलिएट ट्रैकिंग आईडी। राइट। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये सारा प्रोडक्ट वही है, आई एम क्लोजिंग दिस ऑल। अब देखो अब यहाँ पे कोई वही यूआरएल, कोई एफिलिएट आईडी नहीं है, दिस इज द ओरिजिनल यूआरएल। तो यहाँ पे मेरे एफिलिएट आईडी मैंने क्या डाला, डिजिटल सीकर। तो मेरा जितना भी यूआरएल बनेगा सब में डिजिटल सीकर्स लिखा हुआ आएगा। किस वेबसाइट पे मैं अभी मैंने लिखा है bhavnabhardwaj.com, बट आई कैन प्रमोट इट एनीवेयर एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई कैन चेंज एनी टाइम। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं और भी वेबसाइट, और भी मोबाइल ऐप, ये मेरा टॉपिक ऑफ द वेबसाइट्स और मेरा टॉपिक ऑफ द वेबसाइट, किस किस प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है, मेरा प्राइमरी वेबसाइट्स ब्लॉग है, शॉपिंग कंपैरिजन है, या कंटेंट वेबसाइट्स है, या डील कूपन डील की वेबसाइट है, या मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट है, या नॉन प्रॉफिट है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, या जब अगर फेसबुक वगैरह आप डाल रहे हो तो यहाँ पे सोशल मीडिया पेजेस डालोगे, या ग्रुप्स, वेब ब्राउजर है, वेब पोर्टल है, डायरेक्टरी है, किस तरह की इस तरह की वेबसाइट्स आप बना करके एफिलिएट को अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हो, अपने लॉयल यूजर्स बढ़ा सकते हो, और साथ में एफिलिएट प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो। अभी फिलहाल के ब्लॉग है, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट द ब्लॉग एंड आई एम सेलेक्टिंग इट एज अ कंटेंट वेबसाइट। अगर मैंने फेसबुक पेज डाला होता तो आई माइट हैव सेलेक्ट द सोशल मीडिया पेजेस। अब अपनी वेबसाइट को आप प्रमोट कैसे करते हो? ईमेल के थ्रू प्रमोट करते हो, सोशल नेटवर्क पे प्रमोट करते हो, एसईओ के थ्रू प्रमोट करते हो, ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करते हो। तो यू ऑल दीज आर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। मैंने बोला था एफिलिएट मार्केटिंग के बाद आपको उसमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई करना होगा। तो पेड सर्च, राइट? यस मैम, जो भी आपने बताया, जो वेबसाइट या मोबाइल ऐप हम क्या यूज़ कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया है, सो फेसबुक के अलावा यूट्यूब और इंस्टा सब इसी में आएंगे? सब उसी में आएंगे। यस। अगर आप यहाँ पे भावना भारद्वाज के बदले में
आप यहाँ पे वेबसाइट का डालोगे, फेसबुक का पेज facebook.com/digitalseekers, और instagram.com/digitalseekers, youtube.com/digitalseekers, linkedin.com/digitalseekers, इवन व्हाट्सएप का जो चैट ग्रुप चैट है तो उसका चैट का लिंक, तो जहाँ पे भी प्रमोट कर रहा हो। स्लैश अपना यूजर नेम डालना होगा, ये स्टोर आईडी साथ में डालना होगा। नहीं, स्टोर आईडी आपको नहीं डालना होगा। मैं तो अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा वो सारा प्लेटफॉर्म जो है वो इसी नाम से बना हुआ है। मैम ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं फेस करती हूँ, आई डोंट नो प्राची ने फेस किया है या नहीं, ये नाम रखने और जो आईडीज क्रिएट करनी या प्रोफाइल क्रिएट करनी, मुझे तो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, जिससे कि इट शुड बी लिटिल आई कैचिंग आल्सो एंड लोग थोड़ी जल्दी रिलेट भी करें और देखें भी। तो एग्जैक्टली, यू हैव टू कैसे कहाँ से क्रिएटिविटी लाएंगे? नहीं, क्रिएटिविटी लाने से ज्यादा आपको ये सोचना होगा कि इफ यू आर सर्विंग समवन, व्हाट द नेम यू वांट टू गिव दैट कम्युनिटी। अगर इफ यू वांट एक नीश प्रोडक्ट या नीश तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा अभी, तो ये लगता है कि we want, I suppose it's me, I want to keep it open, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं अभी नीश में कहाँ जाऊंगी, बट हाउ कैन आई कीप एन आईडी जो किसी भी चीज में यूज हो जाए एंड देन आई कैन यूज इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, एंड ग्रेजुअली ये कर सकते हैं कि जब हम एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दें। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? Start with your simple, you use your own name, because you are using your own name, then it's like you are open to direct it in any direction. आप अभी रिम्पल से ही स्टार्ट करो। रिम्पल का पेज, रिम्पल का यूट्यूब चैनल, रिम्पल के इंस्टाग्राम, रिम्पल का ऐसा कोई, रिम्पल की वेबसाइट rimple.wordpress.com, rimple.com, facebook.com/ सबको अभी रिम्पल पे ही करो। And once you get the clarity, you can create an identity around that. तो नाम वही रह जाएगा। मे बी उसकी प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग्स को चेंज कर लूँ। किस चीज़ की? जैसे मैंने इस पे देखा था अभी, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट ऑन माय नेम, तो मेरे नाम की जो स्पेलिंग है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज RHYMPLE, और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी वो RH साउंड के साथ आती है। लाइक एक हम बोलते हैं रिम्पल, वो आएगा रिम्पल करके, जैसे H का साउंड भी सुनाई देगा। सो समथिंग लाइक दिस आल्सो आई कैन डू, व्हिच विल बी माय नेम, और जो नेम की स्पेसिफिक स्पेलिंग है वही रखने चाहिए टू स्टार्ट ऑफ। See, people want to connect with you. Till you are not clear about what you are, people is not going to recognize you whether you are RHY or RY, right? RI. So it's up to you what kind of identity you are planning to create around you. So generally हम लोग जो method मैं use करती हूँ ये कि start with the जैसे let's suppose I want people to learn digital marketing, so I can name them digital rock star, right? If I'm thinking of okay, जो लोग को digital में information seek करने, they are well, so I'm naming that community as a digital seekers. So if you are thinking of serving your parents, serving the parents, तो आप पेरेंट्स के अराउंड कुछ नाम सोच सकते हो। तो वो ब्रांड नेम एक अलग है और आपका पर्सनल ब्रांड अलग है। तो जब तक उस ब्रांड की क्लैरिटी नहीं आती है कि आप किस कम्युनिटी को सर्व करने वाले हो, उसको आप कैसे बेस्ट बनाने वाले हो, तब तक के लिए आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर लो। तब तक के लिए आप जो भी आप RHY डिसाइड कर लो या RY डिसाइड करो या RI डिसाइड करो, शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस द इंटरनेट। फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, सब जगह इट शुड बी द कंसिस्टेंट। Once you have decided RH, तो use RH everywhere. Once you have decided RI, use RI everywhere. So that in future people not get confused कि ये Facebook वाला RI में है और यहाँ तो if once you are deciding it, then you are giving meaning to it. नाम देखो, बच्चे का जब जन्म होता है तो हम लोग कितना सोच समझ के नाम रखते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उस बच्चे का जब ग्रोन वो बड़ा हो रहा है तो उस नाम को ही वो एक्सप्रेस करेगा। तो जब आप अभी आप बच्चे का नामकरण कर रहे हो, अब यू आर टॉकिंग अबाउट कि बच्चे का नाम कैसे रखना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम कैसे रखना है, वेबसाइट का नाम कैसे रखना है, अपने ब्रांड का नाम कैसे रखना है। तो यस, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस टू डिसाइड दैट, लेकिन उसकी जो ब्रांडिंग होगी वो उसके लिए ज्यादा मतलब वो उसको ज्यादा मीनिंग देने वाला है। बच्चे का नाम चिंटू हो, लेकिन अगर उसने बहुत अच्छा काम कर लिया है तो चिंटू भी अपने आप में ब्रांड बन जाएगा। चिंटू की चाय भी ब्रांड बन जाएगी, राइट? अगर उसके अराउंड ब्रांड बिल्डिंग की गई है तो
ऐसे जो नाम बिल्कुल बेकार सा लगेगा, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो रखी है, उसमें मतलब वैल्यू एडिशन हो रखा है, उसमें कंटेंट डिलीवरी हो रही है, उससे लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो नाम कुछ भी हो वो ब्रांड बन जाएगा। गूगल का कोई मतलब नहीं था, लेकिन गूगल ने ब्रांड बना लिया। अमेजोन का मतलब जंगल होता है, लेकिन अमेजोन ने एक नई आइडेंटिटी बना ली। एप्पल का मतलब फल होता है, ये हम लोग भूल चुके हैं, और एप्पल आईफोन को ही समझते हैं। तो नाम शुरू में क्या नाम रखा था, यस उन्होंने बहुत सोच समझ के नाम रखा होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन उन्होंने बाद में मुझे किया कि एप्पल का मतलब आईफोन होता है। As a user, we get this, someone has feeded me that thing, that brand in me. तो नाम तो बस यस नाम बहुत सोच समझ के रखेंगे, बट मतलब उस अल्टीमेट वो क्या होने वाला है, उसकी ब्रांडिंग, उसकी आइडेंटिटी, उसका कंटेंट डिलीवरी, उससे ऑडियंस का कनेक्शन, उस पे उसकी वो केवल नाम से ही नहीं होगा। नाम आप कुछ भी रख लो, लेकिन अगर ब्रांडिंग बहुत अच्छी करोगे तो वो नाम भी ब्रांड बन जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम, या तो नाम पे इनिशियली अब वो उसको कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, बहुत पॉपुलर सा वर्ड है, एनालिसिस पैरालिसिस। यहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक है, हम नाम चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इट्स अ जर्नी, वी विल गो एंड फाइंड। अगर नाम नहीं सूट करेगा तो हम बाद में नाम को कुछ और कर लेंगे। गूगल पहले एडवर्ड था, हैव यू हर्ड अबाउट गूगल एडवर्ड? का नाम सुना है आप लोगों ने? एडवर्ड पहले कभी सुना है? एडवर्ड, ADWORD। एडवर्ड वाज अ सुपर डुपर ब्रांड नेम। गूगल के एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम एडवर्ड हुआ करता था, और आज के डेट में मुश्किल से 6 महीने साल भर नहीं होंगे और एडवर्ड किसी को याद भी नहीं है, बिकॉज गूगल हैज गिवन अ न्यू नेम, गूगल एड्स। तो नाउ एवरीवन इज टॉकिंग गूगल एड्स, एडवर्ड्स लोग भूल गए, तो नाम चेंज हो जाता है। मतलब इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दैट कि इसमें नाम बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, इसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी तो जो बेस्ट समझ में आता है उस पर स्टार्ट कर दो, उसको ही करके कंटिन्यू कर दो, राइट। तो हियर यू आर डिसाइडिंग कि आपकी जो वेबसाइट है आप उसको प्रमोट कैसे करते हो, right? So here you are how to utilize your website or app to generate income. आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इनकम जनरेट करोगे? तो यू कैन से दैट Amazon एसोसिएट्स के थ्रू है, या सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है, या आप आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, या आप किसी और के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके विगेट्स के थ्रू करते हो, या एड चला करके करते हो, या किसी और का एफिलिएट प्रोग्राम करके करते हो, ईबे का एफिलिएट, थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क, किस तरह आप अपने प्लेटफॉर्म से कैसे पैसे कमाते हो। राइट नाउ आई एम शोइंग इट फॉर द Amazon एफिलिएट ओनली। So here you can also select your multiple options होते हैं एक ही वेबसाइट पे। आप और क्या तरीका है, डिस्प्ले एड से भी करते हैं क्या, Amazon से भी करते हैं क्या, डिस्प्ले एड से भी करते हैं और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से भी करते हैं, ले सकते हैं। आई एम सेइंग so we can add as many, it is okay, it doesn't yes, hamper our image with them. हाँ, you can add another, you can add as many, but it should be I think it should be like relating with your website। मतलब आप वेबसाइट में आप ऐसा ऐड, बिकॉज आई एम प्लानिंग कि मैं बहुत सारे कोर्स डालूंगी और उस कोर्स को एक्सेस करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस डालूंगी, तो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड सब्सक्रिप्शन फीस। आई एम प्लानिंग कि अपनी वेबसाइट पे मैं एड्स भी चलाऊंगी, लोगों के एड्स चलाऊंगी, तो आई एम सिलेक्टेड द डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सो इट्स अप टू यू, इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि आप कैसे, तो it might be it's good idea if it is contextually related. So you can add another if you want to add another, otherwise you can just remove it. Okay, you can't remove it. थर्ड पार्टी एफिलिएट क्या होता है? जैसे Amazon है, वैसे बहुत सारे नेटवर्क है जहाँ पे आप फ्लिपकार्ट का एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, क्लिक बैंक का एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज एफिलिएट नेटवर्क, there is a platform where affiliate product promoter list their product and affiliate marketer go and pick the product to promote.
सो ऐसे इसको कहते हैं एफिलिएट नेटवर्क। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर्स एफिलिएट प्रोडक्ट को जैसे अमेजोन के पास प्रोडक्ट है तो अमेजोन इज पायनियर इन एफिलिएट मार्केटिंग, सो वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द अमेजोन। बट कल को मैं अगर अपना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहूँ कि मैं अपने कोर्स पे लोगों को कमीशन दूंगी, तो मैं कहाँ किसको बताने जाऊँ कि आप मेरे कोर्स को प्रमोट करो? So I can go to the ClickBank and list my product. You get my product. If you will promote my product, I will give you this much of commission. तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे एफिलिएट ब्रांड ओनर, प्रोडक्ट ओनर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और वहाँ पे एफिलिएट मार्केटर जाके प्रोडक्ट पिक करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट नेटवर्क। क्लिक बैंक है, एफ्लियोरामा है, सियरा सेल है, देयर आर सो मेनी। जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च फॉर एफिलिएट नेटवर्क. You will find hundreds and hundreds of platform where you can go and pick the product. So फिर वो अपना कमीशन भी लेते हैं साथ में। एफिलिएट नेटवर्क। अब you can search for affiliate network in India, Indian affiliate network for education product, affiliate network for क्लिक्स वाले एफिलिएट, क्लिक सीपीसी एफिलिएट नेटवर्क, सीपीएम एफिलिएट नेटवर्क, सीपीसी क्लिक के लिए जहाँ पे पैसे मिलते हो, सीपीसी उसको नेटवर्क कहेंगे, सीपीएम इम्प्रेशंस के लिए जहाँ पैसे मिलते हो, सीपीएल लीड के लिए जहाँ पैसे मिलते हो, सीपीएस सेल्स के लिए जहाँ पैसे मिलते हो। तो यू कैन हैव द जैसे इन जनरल तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कमीशन पर सेल। लेकिन बहुत सारे लोग जब अब रियल एस्टेट में सेल तो होगी नहीं ना ऑनलाइन, वहाँ पे तो लीड के लिए पैसे लोग देंगे। अब कोई बहुत कॉस्टली बहुत बड़ी प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन लोग पेमेंट तो करते नहीं है, तो वहाँ पे लीड के लिए पैसे देते हैं। एफिलिएट नेटवर्क इन इंडिया, एफिलिएट लिस्ट, एफिलिएट साइट्स। Affiliate network for personal development, affiliate network for books, affiliate network for fashion products, affiliate network for educational product. So that way you can also find the websites where you can, V-commission is also a good one. So I think we will have to continue next day because someone is waiting for me. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफिलिएट हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा वेबसाइट जो है वो कैसे पैसे कमा रहा है। सो इट्स नॉट नेसेसरी आपको जो भी सही लगता है वो डाल सकते हो। हाउ डू यू थिंक यू बिल्ड लिंक? आप अपने वेबसाइट पे अमेजोन के प्रोडक्ट के लिंक कैसे डालोगे? आप ब्लॉग एडिटर हो, आप कंटेंट मैनेजमेंट HTML एडिटर, किस तरीके से डालोगे? तो राइट नाउ आई एम सेइंग वी आर मैनेजिंग आवर वेबसाइट वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस में मैं खुद से डाल सकती हूँ। So how many total unique visitors right now आपकी वेबसाइट की क्या स्टेटस है, कितने ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे है? तो right now I'm saying 500 to 5,000. What is your primary reason for joining affiliate, Amazon affiliate? To monetize my website. How did you hear about us? So you can say that blog post from Amazon site, online search, word of mouth, whatever you want, you can give that. And then you will provide the CAPTCHA 46E N8X. You have to accept the terms and conditions. So congratulations, you are in the affiliate dashboard now. Okay, मेरा password क्या है? So here you have completed your profile. बना के यहाँ पे आ जाएंगे, so we can start the program once our own website or whatever we are putting, whatever URL वो create हो जाता है, तो we can start this. Yes, आप यहाँ पे बना करके अभी डैशबोर्ड में चले जाएंगे। अब डैशबोर्ड से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके we can start promoting anywhere. जो एफिलिएट लिंक हम लोग अभी देख रहे थे ना, एप्पल का एफिलिएट लिंक और फ्लिपकार्ट का एफिलिएट लिंक और अमेजोन का एफिलिएट लिंक, वो एफिलिएट लिंक इसके बाद हम लोग अपने अमेजोन के एफिलिएट डैशबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वी हैव टू प्रोवाइड स्टोर आईडी. सो आवर स्टोर आईडी इज डिजिटल सीकर्स. The website and mobile app is about digital marketing.
Okay, so your primary topic is educational books. Our website is blog. We are going to promote it through email and SEO and blog and social network, and you utilize your website to generate income from subscription services. How do you build your link? WordPress ke through. How many unique visitors? 500 to 5,000. Primary reason to join to monetize website. How do you know about this? From online search. So ECMF32, and then accept the terms and conditions and click on finish. So congratulations, ये आपकी एफिलिएट आईडी है. अब जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उसका एफिलिएट आईडी में ये वाला लिंक जरूर दिखेगा. So you can give your payment details. अपना पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स अभी डालना चाहो तो डाल सकते हो, बाद में डालना चाहो तो डाल सकते हो. अभी अगर डालना चाहोगे तो अभी आपको डालना पड़ेगा. अगर आपने कर दिया नाउ तो जब तक डालोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा. तो जब तक आपके पास पैन कार्ड और बैंक डिटेल की डिटेल्स आपके पास नहीं है तब तक नाउ मत करना. पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स साथ में रख के तब नाउ करना. राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर लैटर. So this is the product. This is a dashboard. Now you can select which product. This is your store ID. यहाँ पे अब ये पूरा डैशबोर्ड मैं आपको कल बता दूंगी. प्रोडक्ट लिंकिंग, बैनर्स, विजेट्स, प्रमोशंस, टूल्स, रिपोर्ट्स, हेल्प्स एंड ये सारे. आप आई वुड सजेस्ट कि हाँ अकाउंट बना के आप लोग भी यहाँ पे आ जाना और इसे सारा एक्सप्लोर करना. आइडियली अभी लेट्स सपोज आई एम लुकिंग फॉर, आई वांट टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग बुक. So I'm looking for one of the book I like very much. I want people to know about that. I want to suggest that book. I have read some book and I want to suggest that book to my community. So I'm finding that digital marketing. I'm trying to find the digital marketing book. So digital marketing step-by-step guide. So here I can go and click on that get link. So this is the big link. This is the shortened link. And I can copy this link. And I can suggest this link to my community. Try a good book to read. So because I'm sharing, I know you. You are in the community. I need not to introduce you. You know that I am a digital marketer. Then I'm suggesting there are chances that you will click on this link and you will go to this book. And if you are really interested, because so many people ask me कि मैम कोई book suggest कर दीजिए, and then they can click on that. Okay, read for free or add to ebook cart or buy it now with one click. If you are buying, they can I will get the commission. All right. So this is that we have ideally initially we have started with it. This is एक तरीका है कि आप अपने एफिलिएट किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ सर्च करो, उसका एफिलिएट लिंक जनरेट करो, उसको यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट में डालना है, ब्लॉग में डालना है, सब जगह डाल सकते हैं. उसके अलावा भी और भी तरीके हैं. बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, अमेजोन के किसी भी पेज से लिंक कर सकते हैं. अमेजोन का जो बाउंटी प्रोग्राम मतलब वो ऑफिशियल होलसेल वाले प्रोडक्ट हैं. अमेजोन इज ऑल्सो लॉन्च दी ऑफिस अमेजोन, मतलब ऑफिस में क्या होता है बल्क बाइंग होती है, तो ऑफिस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का है. विजेट्स के थ्रू योर फेवरेट बेक और अमेजोन सर्च का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना. ये सारा पार्ट में हम लोग कल दिखा देंगे. सो एक कल अमेजोन का सेशन होगा और एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होगा. मैक्सिमम 2 से 3 सेशन में हमारा ये कंक्लूड हो जाएगा. राइट. सो आर यू गोइंग टू क्रिएट अकाउंट ऑन अमेजोन टुडे? अमेजोन एसोसिएट, अमेजोन एफिलिएट? Yes, ma'am. So I would suggest let's go and create and explore this dashboard. Tomorrow I am going to explain much about this dashboard. कल क्लास कितने बजे होगी? कल का तो मुझे भी थोड़ा डाउट है. कल का क्लास मैं कल बताऊं, कल शायद नहीं कर पाऊँ, नेक्स्ट बताएंगे. कल परसों कर लेंगे हम लोग क्लास. परसों अगर हो सकेगा तो फिर फर्स्ट हाफ में कर लेंगे मैम. फर्स्ट हाफ में तो नहीं पॉसिबल. अगर कल होगा तो 3 बजे से ही होगा. मोस्ट लाइकली 3 कल कर ही लेंगे. कल 2 क्लास है ना, इस वीक हम लोग खत्म ही करेंगे.
तो अभी हमारे पास इस वीक में आज है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन क्लास होगी, 3 बजे से क्लास होगी। वही 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, मतलब आगे तो नहीं, वही थोड़ा 10 मिनट लेट हो सकता है। 3 बजे से ही क्लास हम लोग रखेंगे। इज दैट फाइन? क्योंकि ना 10 से 2 मेरी ऑलरेडी बैच स्टार्ट हुई हो रखी है, तो उनका जो क्लासेस होता है वो 3 दिन होता है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे संडे बैच एक ऑलरेडी चल रहा है। तो मतलब दो फर्स्ट हाफ में नहीं हो पाएगा, 3 बजे से हम लोग कर लेंगे, इस वीक में हम लोग का डन हो जाएगा ये। व्हाट डू यू थिंक? आर यू ठीक है देयर? मैम, कल का फिर एक बार ही कंफर्म कर लेंगे, सबकी अवेलेबिलिटी चेक करके हाँ, आप बता तो दीजिएगा। अगर हो सके तो ऐसे जो टाइम है वो 3 बजे का ही रखते हैं। मतलब अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग इस वीक बाकी 3 दिन भी 3 बजे कर रहे हैं। इफ वी विल फेस एनी इशू देन एनीवन कैन इन्फॉर्म अदर्स, राइट? यस मैम। ओके मैम। ओके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग अकाउंट बना के इस डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करके आए। ठीक है, सो मैम वो सेशन शेयर कर दीजिएगा हाँ यूट्यूब हाँ का भी, और इसका हाँ, भी मुझे क्लासरूम पे मिला नहीं वो कोई भी। मैं आज शेयर करूँ तो एक्चुअली ना मेरे लैपटॉप में पूरा वो भर गया है, तो सब ना मैंने क्लाउड में स्टोर, हाई रिकॉर्डिंग क्लाउड में है, तो वो क्लाउड से डाउनलोड करके तब मुझे वहाँ क्लासरूम में अपलोड करना है। तो मुझे आज भर का टाइम दे दो, आज का सारा मैं डाउनलोड करके वहाँ अपलोड कर दूँगी। नो प्रॉब्लम मैम। ठीक ठीक ठीक, चलो आज मैं कर दूँगी और साथ में ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, राइट? चलो फिर, टेक केयर, सी यू टुमारो एट 3, बाय, टेक केयर।